Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 2, continuation of second chapter, units and measurement. In last class, we discussed about physical quantity, in which we discussed about fundamental quantity, derived quantity and supplementary quantity. In that we considered 7 fundamental quantities, then 2 supplementary quantities, but we didn't discuss anything about derived quantity. We took 1 or 2 examples, but we didn't discuss in detail. So today we are going to discuss derived quantity with dimension. So आज हमने एक dimension term है उसको use करेंगे and we'll understand what is the dimension and why do we need to use the dimension. Plus we will try to understand how do we get the unit of a particular quantity. So अगर आपको याद होगा ना, when you will focus, if you will check your notebook, if you have written or if you will see the video. In the previous video, you must have seen the first was the quantity, then second column was for unit, then third column was for symbol, and the last one was for dimensional symbol. So अब हम ना जो dimensional symbol जो discuss करेंगे, what is the dimension and all that we'll discuss. But now first I'll give you one example. With that example, we'll try to understand what is the dimension. Okay. So यहाँ पे हम ना out of 7, because dimensions are represented by using fundamental quantities. Dimensions are represented by using 7 fundamental quantities. But out of 7 we are going to discuss about 3, because most of formulas are linked based on 3 fundamental quantities. The first fundamental quantity is length, and the second fundamental quantity is mass, and third fundamental quantity is time. Okay, so if I have to take notation for them, so इसका dimensional notation होता है L, मास का डायमेंशनल नोटेशन होगा m एंड टाइम का डायमेंशनल नोटेशन होगा t. सो द स्टोरी इज नॉट गेटिंग ओवर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. आपको थोड़ा और मॉडिफाई करना है. आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज डायमेंशन ऑफ लेंथ. अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं डायमेंशन ऑफ लेंथ, इफ आई एम राइटिंग डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर मैंने मेंशन कर दिया तो इसमें इट विल कम अंडर स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ. देन दिस व्हाट डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ नोटेशन. इसका पावर 1 है. बट सपोज दैट देयर इज एनी क्वांटिटी जिसका पावर 0 होगा, लाइक L का पावर 0, इफ यू हैव टेकन दैट क्वांटिटी विल बी 1, मींस इट इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन. इसका डायमेंशन नहीं है, इसका कोई पावर नहीं है, तो इट कैन बी टेकन एज 1. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग द डायमेंशन ऑफ मास, so either you write this statement or you write mass and in this bracket you put the dimension of mass is capital M. Dimension of time is capital T. So these are fundamental quantities. You can see you are not having any other things to represent length. To represent length you are having only L. To represent mass you are having only M. To represent time you are having only capital T. Nothing else you are having in this case. Now we'll discuss one more thing. What will be the unit? So जो mass है उसका unit क्या होगा? The mass का unit will be meter. And length का unit will be meter. Mass का unit will be kilogram, that is kg, and time का unit will be what? Second. We are going to use these concepts to understand remaining things. So if I am talking about this dimension, so before understanding dimension properly, we'll take one example. So आप imagine करो area. We are taking the quantity which is called as area. So आपने area ले लिया. अब किसका area लिया वैसा कुछ डिफाइन नहीं है, just it's a area is a quantity. So अब ऐसा कोई quantity है जिसका area आपको पता होगा, तो area of rectangle है ना. रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता, तो मैं उसके टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं. राइटिंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो व्हेन यू आर टेकिंग द एरिया, तो इट्स वेरी सिंपल. यू टेक एनी एरिया, फॉर ईच एंड एवरी एरिया डायमेंशन विल रिमेन सेम. वेदर यू आर टेकिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू आर टेकिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, यू आर टेकिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एनी स्ट्रक्चर का एरिया यू फाइंड आउट, इट्स डायमेंशन विल रिमेन सेम. सो आई हैव टेकन एरिया, देन आई एम टेकिंग जस्ट randomly any area का formula I use. So I use the area of rectangle. So area of rectangle is length into breadth. So what is the criteria? You need to check. So whatever quantities you are having, you need to check these quantity belong to which fundamental quantity. So right now I am taking such quantity which are based on these 3 fundamental quantities. आप उसके आगे भी चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना होगा, but that is not needed. Right now I am giving such quantity which are based on these 3. So like I check, length is nothing but the length itself. Length is nothing but the length itself. और length का जो डायमेंशनल नोटेशन हम यूज करेंगे, नोटेशन हम टॉपिक सिंबल, सो वो होगा n. एंड ब्रेथ बिलोंग्स टू विच डायमेंशनल दिस टर्म, it belongs to length only.
तो उसके लिए मैंने L यूज कर लिया. तो फाइनली दिस इज व्हाट L स्क्वायर. सो अप टिल नाउ वी आर हैविंग डिटेल ऑफ एरिया ओनली, व्हिच मींस इसका मतलब क्या होगा? इट्स मीन दैट टू मेजर एरिया वी नीड टू टेक टू डायमेंशनल डिटेल. I need to measure length in two direction. I need to measure length in two direction. For example, rectangle हो गया. I need to measure the length in this direction, breadth in this direction. It's like this. मतलब x axis पे length हो गया, y axis पे breadth हो गया. तो two dimensional things you need to represent. So area is a two dimensional quantity. जो ना length के टर्म में, बाकी कोई quantity आएगा नहीं. So अगर मुझे area measure करना है किसी quantity का, तो I can get information. अगर मुझे two dimensional detail मिल गया in terms of length, so I will be able to have a detail of area, but I have to represent dimension. So when I'm writing dimension, so it's dimension of area. Dimension of area is equal to what? L square. और जनरली क्या होता है ना, हम डायमेंशंस को ना L M T के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं. मोस्ट ऑफ डायमेंशंस विल फाइंड आउट. सो इफ आई एम राइटिंग, सो ओवर हियर ओनली MLT फॉर्म में लिखोगे आप, LMT टर्म में भी लिखो या MLT किसी भी टर्म में लिखो. तो मैं ML ऑर्डर में लिख रहा हूं, MLT ऑर्डर में लिख रहा हूं. सो M का पावर नहीं है तो उसको जीरो ले लेना, T का पावर नहीं है तो जीरो ले लेना. As I said, if power raised to zero for any quantity, that will represent 1. So it's like a 1 multiplied with L square, 1 multiplied with L square. So that will remain L square only, or L square in the sense L raised to 2. So now we will try to see what is the dimension. अच्छा, एक और quantity कर लेते हैं, फिर dimension को discuss करते हैं. So ये हो गया volume. So if I'm taking volume, so you take any quantity, randomly any quantity जिसका volume आपको पता हो. Like किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा कि ना, why for what reason I didn't take this area of circle and all. We will take that example also and we'll try to see the dimension. First we will see this volume का. So volume के केस में कैसा हो गया कि when you are taking the volume, तो we took volume में ना area of volume of a cuboid, length into breadth into height. So we'll try to compare with these quantities. So ये length तो length को represent करता है, breadth will also represent the length only, and height will also represent the length only. So finally this quantity will be what? L cube. Up till now they are talking about the volume. It means you are going to measure the volume of any quantity, or you are going to measure the volume of any specific you can say structure or device, or you can say any object, if you are having three dimensional detail in terms of length. तो लाइक मुझे ना लेंथ पता होगा, क्यूबॉइड में क्या होगा, मुझे लेंथ पता होगा, क्यूब का ब्रेथ पता होगा, प्लस क्यूब का हाइट पता होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकता हूं. When I'm taking the dimension, so what is the dimension in this presentation for this one? So dimension of volume can be written as what? L cube, or it can be M तो है नहीं तो पावर 0, L raised to 3 and T भी नहीं है तो पावर 0. ठीक है. अब इनके थ्रू ना हमें एक और इंफॉर्मेशन मिल जाता है, दैट इज व्हाट? यूनिट. सो जिससे आपको पता चलता है कि इनकी यूनिट फिक्स होती है, आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हो. तो इफ आई एम टॉकिंग द यूनिट, इसका यूनिट ऑफ एरिया. सो एरिया का यूनिट क्या होगा? लेंथ है ना, लेंथ स्क्वायर है, सो लेंथ का यूनिट मीटर है, तो यूनिट ऑफ एरिया विल बी मीटर स्क्वायर. सो यू टेक एनी एरिया, यू टेक एरिया ऑफ सर्कल, you take area of rectangle, you take area of square, you take area of triangle, unit will be meter square only. Similarly, when I am talking the unit of this volume, what will be the unit? Unit of volume will be, so we'll see the dimensional notations का क्या, L raised to 3 है, तो it will be meter, L is for meter, so M raised to 3. अब हम आ जाते हैं डायमेंशन का जो टर्म है उस पे. तो डायमेंशन क्या कहना चाहता है? Dimension of any physical quantity. Dimensions of any physical quantities are the powers. Dimension of any physical quantities, any physical quantity or any fundamental any physical quantity are powers or exponents. ये powers है या exponents है? यहाँ पे देखो are the powers. यहाँ पे जीरो भी है, ठीक है, ये powers हो गए. और exponents, किसको ये पावर्स और एक्सपोनेंट्स है? टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड. इन पावर्स को क्या सपोर्ट होना चाहिए? किसका सपोर्ट? फंडामेंटल क्वांटिटीज का. सो दीज पावर्स आर फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो देन इट विल गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट क्वांटिटी. सो when these powers are
raised to these fundamental quantities, or these fundamental quantities are raised for these powers, then you will have complete information about given quantity. So as you can see the definition is given as dimension of a physical quantity are parts or exponents to which fundamental quantity must be raised, to which the fundamental quantities must be raised, किसके लिए? To represent that quantity completely. So ये powers है to which fundamental quantity will be this raised to give the complete information of that quantity. So this particular mechanism is called as dimension. Okay. अब हम ना नए नए formulas लेते हैं and we'll try to analyze the formula also कि वो formula क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं. और if one thing to memorize formula you have to use the mnemonics, या आप tricks और techniques बना लो, because in physics formulas are very important. If you are very clear with formula, you can deal with n number of things. Formulas are not clear, then you will have lots of difficulty. So it's better कि हम formula पे ज्यादा focus करें. So right now we are going to take new quantity and we'll try to find out the dimension of that one. ये तो हमको length, mass, time का पता चल गया है, ठीक है. Just we'll see कि हमको वो quantities के dimensions मिलते हैं या नहीं मिलते. So derived quantity का मतलब क्या होगा? आप नया quantity मिल रहा है in terms of fundamental quantities like area is length into breadth, फिर वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला. अब उसके बाद हम उससे डायमेंशन निकाल रहे हैं, उसका यूनिट भी निकाल रहे हैं. सो आई एम यूजिंग द टर्म डेंसिटी. ओके, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर दोस पीपल ने जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, जस्ट हिंदी में हम लेते हैं डी फॉर दिल, ठीक है. अगर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इफ हार्ट विल ब्रेक, सो वैसा डिसअपॉइंट वाली बात नहीं है. डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लो. अपर वैल्यू विल बी लाइक m and lower is like v. So density is what? Mass upon volume. Just it's a technique to memorize these formulae, nothing else. उसका कोई specific meaning नहीं है. Don't try to find out the meaning for that one. तो one more thing, if you remember ना, dimension of area हमने निकाला था. Dimension of area में क्या मिला था? L raised to 2 मिला था, और m raised to 0 और m raised to 0 था, L raised to 2 था, T raised to 0. आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. Then we took dimension of volume which was L raised to 3. आपको डायरेक्टली पता है तो कोई इशू नहीं, हम वैसे कहेंगे. तो ये है डेंसिटी. We have to take dimension. तो I am writing dimension of density will be what? Dimension of density is equal to what? Dimension of mass upon dimension of volume. अभी मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन इज कैपिटल M, that we know. But what's the dimension of volume? Volume by dimension is L raised to 3. We did this just now. So अब क्या करना है? This value you take up. So dimension of m, when L will come up, its power will be negative. ठीक है? Now you take them together. So m L raised to power minus 3. अगर कोई सेम क्वांटिटी होता तो उनका पावर क्या होता? ऐड होता. Algebraically means like plus 1 minus 2 है, तो 1 minus 2 का वैल्यू क्या होगा? That is minus 1. Like 1 plus 2 है, तो then that is 3 in that way. So by algebraic method we are going to add them. So after density we are having a term velocity. So velocity का फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता, just you remember the term वेदूत. Sometime now whatever technique I am telling that will be little difficult for you. You will find out it is better to memorize the formula itself. You can do that also. But sometime whatever technique I am telling, that technique will help you in memorizing formula and all. So I think you can use that also, or you can make your own technique also. It's not compulsory. Whatever I am telling you can use that only. So velocity is vedut. Vedut in the sense V E for equal to D for displacement and T for time. Okay. So when I know the velocity, so अब क्या लिखना? Therefore dimension of velocity will be equal to what? Dimension of displacement upon dimension of time. Okay. And what's the dimension of displacement? Displacement is nothing but the length, तो इसका dimension L होगा. Time is nothing but T, तो इसका dimension T होगा. Now you take them together, so L T will go up, T raised to power minus 1. Now if you are taking them collectively, so dimension of velocity is nothing but L T raised to power minus 1. If you are introducing m, that will be power 0, or you can write it as m raised to 0 L
टी रेज टू पावर माइनस 1। अच्छा, अब एक और चीज है जो मैंने लास्ट वाले में मैं भूल गया हूं, दैट इज यूनिट, और यहां पे भी यूनिट देख लो। सो व्हाट्स द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी व्हाट? दिस लेंथ का यूनिट इज मीटर and time का unit is second, so meter per second will be unit for velocity. So with the help of unit also you can get dimension, like ना ये meter है तो meter will represent L, second will represent T raised to power minus 1. So unit will also help you in getting dimension. तो unit का मतलब ये होता है कि that's a dimensional information. When I'm talking about this density, so unit of density, unit of density. Unit of density is what? Mass का unit is kg and length का unit meter, तो kg meter cube per meter cube. Okay? अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। So एक्सेलरेशन क्या होता है? You must have done. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो उसके लिए एक ना राइम है जो मुझे हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अभी क्या होता है ना, जो यंगस्टर्स हैं वो क्या होते हैं ना, बाइक ना किसी भी स्पीड से ड्राइव करते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। तो जस्ट उसके बेसिस पे एक टेक्निक है, न्यू जनरेशन क्राइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जस्ट राइम के टर्म है विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि अगर ना वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग देयर इज नो एक्सेलरेशन। यू मस्ट हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड। सो मैं फिर से बता देता हूं, एक्सेलरेशन इज, so new generation crime, acceleration is change in velocity upon time। ठीक है, वैसे काफी लोगों के लिए ऐसा होगा कि ना ये याद करने में कौन सी बड़ी बात है, बट वी हैव सीन दैट मेनी पीपल नाउ हु राइट दीस फॉर्मूले आल्सो रॉन्ग। सो ये उनके लिए हेल्प करेगा। अगेन रिपीट, न्यू जनरेशन क्राइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जस्ट राइम के टर्म में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो व्हाट टू डू, यू टेक दिस, therefore dimension of acceleration। so एक चीज आपको ये समझना है ना कि velocity अगर आपने लिया, velocity कैसा भी हो, it's a change in velocity, initial velocity, final velocity, for all velocities dimension will be same, there will not be any kinds of change। so if you are taking the acceleration then it is what? dimension acceleration is what? dimension of change in velocity और dimension of only velocity। सिर्फ velocity term भी यूज करोगे तो भी चलेगा, तो upon dimension of time। What's the dimension of velocity? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, that was L t raised to power minus 1, and what's the dimension of time? That is what? T. You can take this t up, so L t raised to power minus 1, and this is what? T will go up minus 1. If you take them collectively, what are we going to get? L minus 1 and minus 1, because you are having t and t, both will have some power, so this power is minus 1, this power is minus 1, as I said algebraically आप उनको ऐड कर दो तो lt raised to power minus 2, तो dimension of acceleration is lt raised to power minus 2, and what will be the unit? Therefore the unit of acceleration, if I am talking the unit of acceleration, so क्या होगा unit acceleration का? length will represent meter and time will represent second, so meter per second square। अब हम आ जाते हैं एक और क्वांटिटी। सो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स है जिसके डायमेंशन हमको पता होने ही चाहिए, बहुत बेसिक वाले, लाइक वेलोसिटी का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट वाज L t raised to power minus 1। देन वी डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन जिसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, L t raised to power minus 2। These are the basic dimensions because most of formulas are dependent on these quantity only। तो अब हम क्या करते हैं, नया फॉर्मूला लेते हैं फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या करना है, जैसे आप ऐसे याद कर लो, फादर इज इक्वल टू माँ, ठीक है, तो फादर विल रिप्रेजेंट F इज इक्वल टू ma। So F is force, m is mass and a is acceleration। तो मुझे फोर्स का डायमेंशन निकालना। अब नोटेशन टर्म में भी लोगे तो भी, सिंबल भी लोगे तो भी चल जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन इज व्हाट? मास का डायमेंशन है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। सो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन इज व्हाट? कैपिटल M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने वहां लिखा हुआ है L t raised to power minus 2। नाउ यू टेक देम कलेक्टिवली, तो ये m हो जाएगा L t raised to power minus 2। सो इट इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ फोर्स। And what about the unit? So unit of force is what? So ये मास का यूनिट होगा kg, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड रेज़ टू पावर माइनस 2, और पूरे को रिमूव करके आप नया यूनिट ले सकते हो, दैट इज व्हाट? न्यूटन। गॉट इट?
सो अब अगला आ जाता है, तो यहां पे हमने एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं. किसका डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन. दैट इज m l t raised to power minus 2. यू कैन सी ना सीरियल ऑर्डर से ये इंक्रीज हो रहा है. lt minus 1, lt minus 2 और lt minus 2 में क्या होगा? m will get added. ठीक है. अब हम आ जाते हैं वर्क डन. सो अगर जिसको फॉर्मूला पता है कोई इशू नहीं, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन मीन्स फाइनली सेटल्ड. ठीक है, ये जस्ट टेक्निक है याद करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है. तो वर्क डन मीन्स ये इक्वल हो गया फाइनली सेटल्ड से, मतलब एफ हो गया, सेटल्ड से ये एस हो गया. उसके आगे ना कहीं के भी आप देखोगे ना कॉस थीटा एंड ऑल, बट अभी तक आपने लर्न नहीं किया. वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट द कॉस थीटा एंड ऑल, सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट वन. You can write W is equal to F cos theta, but right now I'm not focusing on that term because we have learned work is equal to force into displacement till line standard. So I'm going according to that. So अब work का dimension क्या होगा? So therefore dimension of work is equal to dimension of force into dimension of displacement. So work का dimension W is equal to force का dimension क्या है? Force का dimension is m l t raised to power minus 2 and displacement का dimension is what? That is L. So if you take them collectively, L will remain m. What's the power of L? 1 and this L का power is also 1. So 1 plus 1 will be what? 2. So ml raised to 2, t raised to power minus 2. So this is what dimension of work. And what will be the unit? Unit of work. So if I represent like this, so it will be kg, length का होगा meter square and second raised to power minus 2. और work होता है force into displacement. Force का unit क्या होगा? न्यूटन. Displacement का क्या होगा? मीटर. और एक नया यूनिट होगा जो उसका जिसने इन्वेंट किया है उसके हिसाब से, दैट इज व्हाट? जूल. एक और पॉइंट आपको नोट करना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट? जो ये वर्क है ना, वर्क का डायमेंशन E के इक्वल भी होता है. E मतलब व्हाट? एनर्जी. सो यू कैन राइट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अब ये एनर्जी किसकी एनर्जी का डायमेंशन हो सकता है? दिस कैन बी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, दिस कैन बी पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, दिस कैन बी हीट एनर्जी का डायमेंशन. यू टेक एनी एनर्जी, सेम डायमेंशन यू आर गोइंग टू यूज. हाँ, एक और मैं बात बता दूं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ये जो आपने एक्सेलरेशन लिया ना यहां पे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक और क्वांटिटी का डायमेंशन हो सकता है. ये हो सकता है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी ये कौन सी बला है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ये उस क्वांटिटी का डायमेंशन भी ये हो सकता है, lt raised to power minus 2. यहां पे क्या होगा? इट कैन. ठीक है, अगर आपको बताना है तो वर्क का अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वर्क का डायमेंशन वी कैन फाइंड आउट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन यू विल फाइंड आउट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन यू विल फाइंड आउट, देन यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ दिस वर्क. एंड वर्क का डायमेंशन विल बी इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन विच इज कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड ऑल. सो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. नाउ विल टेक one or two more quantity in this case. So I am going to take suppose that you can take any quantity if you know the formula and all in terms of fundamental quantity, but I am going to take pressure. So pressure is what? Force upon area. Pressure is force upon area. So pressure को भी याद करने के लिए एक टेक्निक है. Father means pa. Father means pa. है ना, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है पा. सो वेयर F इज इक्वल टू P इंटू A, वेयर F इज नथिंग बट द फोर्स, P इज व्हाट? प्रेशर, एंड A इज एरिया. अच्छा, माय बेसिक आइडिया टू गिव टेक्निक फॉर दीज थिंग्स आर like whenever you are preparing any formula and you are finding any difficulty, you can make your own way to memorize that formula, because most of the time what do we find कि by formula only you are able to find out the new door to go to the new concept. So formulas are playing very important role in physics, तो very important. इनका जो particular meaning है and all वो जब चैप्टर करेंगे, जब ये टर्म्स आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी इस चैप्टर के लिए हमें ना फॉर्मुलेस पता होने चाहिए. तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया. सो इफ आई एम टॉकिंग द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? फोर्स का डायमेंशन होगा ml, वहां पे लिखा हुआ है ml t raised to power minus 2, एंड एरिया का डायमेंशन आपने स्टार्टिंग में किया था हमने l raised to 2. तो देखो आप कैलकुलेशन करना तो यहां पे भी कर सकते हो, या आप नॉर्मल रूटीन मेथड को फॉलो कर लो. m
L T raised to power minus 2, then L will go up, L raised to power minus 2, then what will happen? For the dimension of pressure is equal to, ये m हो गया, L raised to 1 है, minus 2 है, तो m will remain m, but L क्या होगा, 1 minus 2 क्या होगा, minus 1, T raised to power minus 2. तो this is the dimension of pressure. And unit of pressure क्या होगा, unit of pressure, तो unit of pressure if you will take according to this, mass का हो गया kg, length का मीटर raised to power minus 1, second raised to power minus 2, और if you will see ना, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर रेज़ टू पावर माइनस 2, और एक जो नया है पास्कल. ओके, अब एक और क्वांटिटी होती है दैट इज मोमेंटम. आपने पहले लर्न किया होगा. सो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी. करेक्ट, ठीक है. ये मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? देखो वहां पे ना वो कैपिटल P है, स्मॉल p होगा, ठीक है. ये P इज इक्वल टू, तो मास मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, दैट इज कैपिटल M. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वी हैव टेकन Lt रेज़ टू पावर माइनस 1. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा mLt रेज़ टू पावर माइनस 1. ये हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंटम. ओके, अब हम आ जाते हैं नए क्वांटिटी पे, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स. इंपल्स, इंपल्स को याद करने के लिए क्या है, सो आई एम यूजिंग टर्म इंपल्स. इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है फोर्स एक्सर्टेड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. उसको याद करने के लिए टेक्निक हम ले लेते हैं आई एम फिट. I am fit. So I for impulse equal to F for force into time. ठीक है. So impulse का जो नोटेशन होता है ना वो J होता है. तो ये क्या होगा, J equal to F into T. So dimension of impulse क्या होगा, dimension of force into dimension of time. तो ये क्या होगा, dimension of impulse is equal to dimension of force क्या है, mLt raised to power minus 2, and टाइम का क्या होगा, t होगा. सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई लिटिल मोर, तो डायमेंशन ऑफ j क्या होगा, ये m हो गया, l हो गया, t माइनस 2 और ये 1 क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 1. सो एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम और डायमेंशन ऑफ इंपल्स क्या होता है, सेम होता है. तो कभी कभी एग्जाम में होता है ना, राइट डाउन टू क्वांटिटी व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन, तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो ये हो गया आपका कंडीशन. सो अब इसका यूनिट का मुझे लेना है, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ इंपल्स. सो इंपल्स का यूनिट इफ आई एम टेकिंग अकॉर्डिंग टू दिस kg मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर माइनस 1, और फॉर्मूले से ये क्या हो गया, और न्यूटन, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड. गॉट इट. अब एक और टर्म है टॉर्क. टॉर्क का क्या होता है ना, अभी देखो, वैसे अगर हम लेना है तो हम तो बहुत सारे टर्म्स ले सकते हैं. जस्ट आई एम गिविंग सम टर्म्स व्हिच आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड ऑल. हमें डेरिवेशन में जिसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉर्क, तो टॉर्क के लिए ना मैंने एक वर्ड यूज किया है, तारीफ. सो T विल रिप्रेजेंट टॉर्क, ठीक है. A, दिस इज व्हाट R इनटू F. यहां पे जो R है ना, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. perpendicular distance. Got it? And this is what force. हाँ, ये एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटी वगैरह है, हम उतने डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे. ये टॉर्क हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, ये फोर्स F हो गया. What's the dimension of torque? Dimension of torque is what? Dimension of perpendicular distance into dimension of force. Perpendicular distance मतलब लेंथ ही हो गया ना, तो लेंथ का डायमेंशन हो गया L. अच्छा, रेडियस होगा ना, रेडियस का भी डायमेंशन आपको L ही लेना है. रेडियस इज ऑल्सो अगेन लेंथ, तो डायमेंशन विल बी L. फोर्स का डायमेंशन क्या है, mLt raised to power minus 2. व्हाट विल यू फाइंड आउट, m विल रिमेन m, L raised to 1, L raised to 1, तो क्या होगा, L raised to 2, T raised to power minus 2. तो ये किसका डायमेंशन होगा, टॉर्क का. अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट ऑफ टॉर्क. देखो यहां पे बहुत सारी चीजें आपको नया लर्न करने को मिल सकता है. इफ यू रिमेंबर ना, आप एक बार वर्क का डायमेंशन चेक करके देखो.
check out dimension of work. You will find out dimension of torque and dimension of work are nothing but same. तो ये भी दो क्वांटिटीज हो गए जिनके डायमेंशन सेम हो सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क एंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क. तो क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यहाँ पे ना फोर्स है, ये डिस्टेंस, तो डायमेंशनली क्या है, दोनों सेम क्वांटिटी है. यूनिट क्या हो सकता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और ये मीटर हो गया, और इस डायमेंशन के हिसाब से क्या होगा, और केजी लेंथ का मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर -2, और आप जूल भी यूज कर सकते हो क्योंकि डायमेंशनली ये क्वांटिटी वर्क के क्या है, इक्वल है. तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनका हम डायमेंशन डिस्कस करते रहेंगे, तो उसका कोई लिमिट नहीं है. अब एक और मैं क्वांटिटी डिस्कस कर लेता हूं बिकॉज दैट आई थिंक इंपॉर्टेंट है. आपको फॉर्मुलेस वगैरह में उसकी रिक्वायरमेंट होगी. सो वो क्वांटिटी हो गया आपका देखो, आपने ना प्रेशर का डायमेंशन निकाला था, प्रेशर का डायमेंशन. तो यहां पे ना एक होता है स्ट्रेन करके क्वांटिटी है. स्ट्रेन क्या होता है ना, स्ट्रेन होता है चेंज इन, फॉर एग्जांपल लेंथ ले लिया मैंने, चेंज इन लेंथ, एक्चुअली ये चेंज इन वॉल्यूम भी आएगा. तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. या यहां पे क्या हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो आप लेंथ की जगह वॉल्यूम भी होता है, तो वो किसी और के लिए स्ट्रेन होगा, ये किसी और के लिए स्ट्रेन है. लेंथ है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, अगर वॉल्यूम होगा तो दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन, जैसे एज आई सेड ना, if you are taking an area, you take an area of a circle, you take an area of rectangle, you take an area of square, कोई भी एरिया आप लोगे, डायमेंशन will remain same. Similarly, if I am talking about the strain, I am taking any strain, डायमेंशन will remain same. अगर डायमेंशन अगर उसका होगा तो देखते हैं अभी. तो अगर मान लो आपने डायमेंशन स्ट्रेन का लेने की कोशिश की, तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, देखो, चेंज इन लेंथ, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, मैं उसमें टाइम वेस्ट ले रहा हूं, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ओरिजिनल लेंथ. तो क्या होगा कि मान लो पहले वाले का डायमेंशन एल है, डिनोमिनेटर में भी डायमेंशन एल होगा, क्योंकि दोनों में लेंथ लेंथ है, तो ये क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा. तो फाइनली या ऐसे लेना होगा अगर आप उसको ऊपर लेके जाते हो, है ना, इस तरह से करेंगे तो बहुत रूडली होगा ये. सो ये एल हो गया, ये क्या होगा, एल रेज़ टू पावर -1 हो गया, व्हेन इट विल गो अप इट इज एल रेज़ टू 0, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. तो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. स्ट्रेन इज व्हाट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन नहीं होता, ठीक है. तो अब जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट भी नहीं होगा, एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी यूनिट भी नहीं होती. क्यों, क्योंकि अगर ये मान लो मीटर, ये भी मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. अगर वॉल्यूम लिया है तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो नो डायमेंशन फॉर द स्ट्रेन. तो स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता, बट फॉर व्हाट रीजन आई एम टेकिंग दिस टर्म, वो आप अभी समझ जाओगे. तो अब ऐसे करके ना 3 टर्म्स है, या 3 टर्म्स, उनका जनरल टर्म मैं ले रहा हूं. सो देयर इज अ वन टर्म, हो सकता है कहीं पे आपको फॉर्मूले में की रिक्वायरमेंट हो जाए, यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस, फिर इसकी जगह पे एक और टर्म हो सकता है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और दूसरा हो सकता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. गॉट इट, रिजिडिटी. इनमें से कोई भी टर्म, ये किसके इक्वल होते हैं, दीज क्वांटिटीज आर इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है. अब आपके इंफॉर्मेशन में मैं बता दूं, स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर. स्ट्रेस प्रेशर के जैसा होता है. तो अब उसके हिसाब से मैं लेता हूं ना, मतलब ये क्वांटिटी का डायमेंशन, जो भी क्वांटिटी लेना है, तो यहां पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेन. बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है, स्ट्रेन का डायमेंशन होता नहीं है, तो वो 1 हो जाएगा वहां पे, ठीक है. बट व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, एज आई सेड ना, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है. और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी रेज़ टू पावर -2, और ये क्या होगा, एल रेज़ टू 2. ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एम एल रेज़ टू पावर -1 टी रेज़ टू पावर -2. ओके. सो अब यहां पे हमने रख दिया, ये क्या हो गया, एम एल रेज़ टू पावर -1 टी रेज़ टू पावर -2. सो फाइनली डायमेंशन हो गया एम एल रेज़ टू पावर -1 टी रेज़ टू पावर -2. तो अब जो भी ना यूनिट होगा प्रेशर के लिए, वही सेम यूनिट इसके लिए भी होगा. जो भी डायमेंशन होगा स्ट्रेस के लिए, प्रेशर के लिए सेम डायमेंशन इनके लिए भी होगा. तब एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि प्रेशर का डायमेंशन, देखो यहां पे
किसका किसका डायमेंशन? प्रेशर का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन, बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन, देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इनका यूनिट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ चेंज। सो फ्यूचर में कभी ये क्वांटिटीज मिलते हैं तो यू कैन यूज इट इन दिस वे। अब दो क्वांटिटीज और डिस्कस करना चाहता हूं मैं, बिकॉज दोज क्वांटिटीज आर मिसअंडरस्टूड बिकॉज ऑफ देयर नेम और द टर्म विच वी यूज। एक क्वांटिटी है टेंशन। सो देयर इज नो लिमिट, इसको हम करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है इसका। तो टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। अगर मुझे टेंशन का डायमेंशन निकालना है, व्हाट शुड आई डू? आई नीड टू नो द डायमेंशन ऑफ फोर्स, करेक्ट? सो व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ फोर्स? mlt raised to power minus 2, and whatever is the unit for tension, same unit will be, whatever is the unit for force, same will be the unit for tension. अब इसकी वजह से एक टर्म को हम वापस से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दैट टर्म इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये टेंशन है तो मतलब फोर्स होगा, लेकिन एक्जैक्टली फोर्स नहीं है। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट। अपॉन को हम पढ़ते हैं पर यूनिट लेंथ होता है। इट्स अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? सो इसको याद करने के लिए मैंने एक टेक्निक बताया था, सरफेस टेंशन इक्वल टू, सरफेस टेंशन इज फुल, सरफेस टेंशन इज फुल, मीनिंग है नहीं है वो नहीं देखना हमको। तो फुल मतलब F अपॉन L, ठीक है? तो सरफेस टेंशन का अगर मुझे डायमेंशन लेना है तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा हमारे पास? mlt raised to power minus 2, and what's the dimension of length? This L will go up, या आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर दो तो भी चलेगा। So dimension of surface tension is what? mt raised to power minus 2. Okay. So I think these are the quantities which can help you in understanding how to derive dimensional formula and all. So there is a no limit. अगर आप dimensional formula derive करना है आपको तो you can find out for n number of quantities. There is a no limit. You can keep going ahead and you can continue with that dimensional analysis or dimensional condition. So there is a no limit. There is a no end. So whatever quantity you are getting, you can get the dimension of that one. I need to discuss certain things about the dimension only, but in different way. We will discuss about those quantities जिनके dimensions हम नहीं लेंगे। तो किनके dimensions हम नहीं लेंगे? तो सबसे पहला है ना, किसका dimension नहीं होगा? तो नंबर होते हैं ना, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। उस जगह पे 1 ले लोगे तो भी चलेगा, या नहीं डायमेंशन होता बेसिकली वो 1 इन द सेंस, वो एक क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर मैंने लिखा है ना यहाँ पे ml raised to 2 है, अगर 1 आ रहा है तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? नंबर का डायमेंशन नहीं होता। सेकेंड, नंबर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। नंबर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। नंबर कांस्टेंट इन द सेंस, नंबर कांस्टेंट जो भी वैल्यू मिला तो उसका डायमेंशन 1। फॉर एग्जांपल पाई इज अ नंबर कांस्टेंट, ठीक है? नंबर कांस्टेंट इन द सेंस, अब ये क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? मतलब इसका डायमेंशन नहीं होगा। 1 मतलब डायमेंशन नहीं होगा। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे होगा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, इसकी जगह पे भी आप 1 लिख सकते हो, ठीक है? बट कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है। तो कांस्टेंट विद यूनिट्स विल हैव डायमेंशन। कांस्टेंट विद यूनिट विल हैव डायमेंशन, सो कैसे होगा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी होता है ना, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने लिखा है डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नंबर है ना, इसका डायमेंशन नहीं होगा। बट ये जो मीटर है ना, मीटर क्या होगा? लेंथ के लिए, सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। तो एज आई से जी का डायमेंशन एक्सेलरेशन के डायमेंशन के सिमिलर। गॉट इट? सो सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कोई और कांस्टेंट, लाइक ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है?
सो ये हो गया F इज इक्वल टू, अब इसके लिए ना मैं एक टेक्निक बता देता हूं, थोड़ा स्टूपिड टेक्निक हो सकता है, ठीक है। सो लाइक मिस्टर महात्मा गांधी रिवोल्टेड ट्वाइस, क्योंकि अब मुझे उतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं कि मैं कैसे फॉर्मूला था क्या आता है, यू हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड। मिस्टर महात्मा गांधी रिवोल्टेड ट्वाइस, फाइनली मिस्टर महात्मा गांधी रिवोल्टेड ट्वाइस, वैसे करके आप याद कर लो। सो व्हाट्स अ कैपिटल जी? कैपिटल जी इज व्हाट? F R स्क्वायर अपॉन कैपिटल M into small m. So what the dimension of capital G? So dimension of capital G is what? Dimension of force into dimension of R raised to 2 upon dimension of this capital M, dimension of this small m. ठीक है, अब जगह नहीं है तो मैं एक्चुअली मुझे उस साइड ही करना चाहिए था, सो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो देन डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ फोर्स? M L T raised to power minus 2. It's a gravitational constant. Capital is the gravitational constant. So we'll see this constant has a unit. इस constant का unit होता है, that's why you can get the dimension. इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to power minus 2. तो ये यूनिट के वजह से आपको डायमेंशन मिलेगा। So we'll see इसका डायमेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। So F का डायमेंशन MLT raised to power minus 2. R is basically separation between two objects. So वो लेंथ हो गया ना, L raised to 2 हो जाएगा वो, and this M और M 2 times है तो that is M raised to 2. You can take them up और आप directly यहाँ पे cancel करना तो this 1M से cancel हो जाएगा। Then what will happen? This M will go up, raised to 1 है ना, तो ये M raised to power minus 1 होगा। This L and L raised to 2 will add L raised to 3 and T raised to power minus 2. So it is what? Dimension of this one. Gravitational constant. So things which we needed to understand was कि constants अगर होगा only number constants, then there will not be any kinds of dimension. But if there will be constant with unit, there will be dimension for that quantity. Okay? And जो trigonometry terms होते हैं या exponential values होते हैं, उनके dimensions भी क्या होते हैं? नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कोई वैल्यू दिया है, cos थीटा दिया है, sin थीटा दिया है, cos थीटा का डायमेंशन नहीं होगा तो ये 1 हो जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आप ले लो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा लिखा हुआ है, तो इसका डायमेंशन हो सकता है, इसका डायमेंशन हो सकता है, बट इसका डायमेंशन नहीं होगा। दिस विल बी रिटेन एज 1। ओके, वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट लेटर। और एक्सपोनेंट होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, e रेज टू सपोज दैट कोई वैल्यूज है, e रेज टू एक्स वाई जेड है, तो ये जो एक्स वाई जेड होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, दैट विल बी 1। ठीक है, आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद सम dimensions and we'll discuss about some new term. Thank you very much.